تین دن تک جھومتا رہا، گویا دعویٰ بتا رہا تھا دنیا والوں اب وہ آ گیا ہے جسے خدا نے بھی کعبے کا بھی کعبہ بنا کے بھیجا ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر میرے امام کہنے میں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا، تیری حیرت تھی کہ ہر بت تھرے تھرا کر گر گیا۔ آؤ میرے اور آپ کے رب کائنات کو میرے نبی کریم علیہ السلام کے وجود سے سجا دیا۔ کیسے رب کائنات نے کائنات کو سجایا ہے، آج میں تمہیں بخاری کی حدیث سناتا چلو۔ امام حاکم کی مسند میں روایت موجود، امام احمد کی مسند میں روایت موجود، امام بیہقی کی شعبۃ ایمان میں روایت موجود، امام احمد کی مسند میں روایت موجود، اللہ اکبر دیگر کتب صحیحہ کے اندر روایت موجود۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء، اے مسجد اے میرے غلاموں، رب کائنات نے مجھے نبیوں پر 6 شانیں عطا فرمائی، نبیوں پر رب کائنات نے مجھے 6 شانیں عطا فرمائی۔ سونیا بڑیا 6 شانوں میں پہلی شان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوتی کو جوامع الکلم، رب کائنات نے مجھے جامع الکلم عطا فرمائے نے، مجھے میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائیاں نے، پتھر بھی میریاں گلاں سن دے نے، پتھر بھی میریاں گلاں سن دے نے، درخت بھی میریاں گلاں سن دے نے، چاند بھی میریاں گلاں سنتا ہے، اللہ اکبر پتھر تے دیواراں بھی میریاں گلاں سن دیاں نے، چڑیاں بھی میریاں گلاں سن دیاں نے، جانور بھی میریاں گلاں سن دے نے۔ اللہ اکبر میرے کملی والے آقا نے فرمایا اوتی کو جوامع الکلم، رب نے مجھے میٹھی میٹھی بولیاں عطا فرمائیاں نے۔ میاں صاحب کہتے ہیں ککھ سوال نہیں مشیری اندر، ککھ سوال نہیں مشیری اندر، تے کھنڈاں بھی چکھ دتھیاں، اے سبا نالوں محمد بادشاہ گلاں سنے دیاں مٹھیاں۔ میرے معبود کا ذکر بھی کرے گا تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، قتادہ نے ہمیں بتا دیا ہے اور حضرت قتادہ کا فرمان میری اور تیری تعین میں بولا ہے، توجہ کہ نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، سارے مل کے پڑھو نا کہ نام نبی کا رکھیا اللہ نے خود خیال، اے نمازاں وچ بھی نالے، اے اذاناں وچ بھی نالے، سارے مل کے اے اذاناں وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے، مل کے پڑھو نا اے اذاناں وچ بھی نالے، نالے رب اس تو جدا نہیں، نہ رب کوئے جدا ہے، سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں آیا سنائے، سونے کا نام سونا ہر برس دی دوائے، سونا مدینے والا۔ نماز بھی میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں، آزان بھی میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں، کلمہ بھی میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں، اللہ اکبر خطیب کا خطبہ بھی میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رب کائنات نے میرے نبی کے ذکر کو
करने रब कायनात ने मेरे नबी के जिक्र के चर्चे फरमाए हैं। याद रखना जो बंदा भी मेरे नबी के जिक्र के चर्चे करेगा कुरान और सुन्नत उसकी ताईद भी करेगा, नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी, नबी के सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। रब ताला ने इतनी शान वाला नबी हमें अता फरमाया है, जो है रब ने इतनी शान वाला नबी अता फरमाया है। बस आखिरी बात तवज्जो करना, आखिरी बात अस्कर की बात को खत्म करता हूँ। कहो जरा सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया खैरु यौमिन तलात शम्स यौमुल जुमुआ, लोगों दिनों में सबसे अफजल जिसको रब कायनात ने अफजल दिन बनाया वो जुमे का दिन है। वो कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। अच्छा या रसूल अल्लाह, जुमे वाले दिन को तो बड़ी फजीलतें हैं। अब सुनना जरा, जुमे वाले दिन जब मस्जिद में आया करो तो ये सारी शानें ज़हन में रख कर आया करो ताकि रब ताला कामिल जुमे की बरकतें अता फरमाए। जुमे का दिन बख्शिश वाला दिन है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जुमे वाले दिन एक नेकी करोगे तो 70 गुना नेकी का सवाब मिलेगा। समझो, जो बंदा जुमे को मर जाए तो अज़ाब कब्र से बच जाएगा। मेरे लिए ना चलाएं कम से कम, मेरे लिए मसला हो जाएगा। तवज्जो फरमाइए, वैसे लोग के लिए चलाएं और इनके करेक्शन अगर उधर फेर दे तो बहुत अच्छा। तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी ने क्या फरमाया? खैरु यौमिन तलात शम्स यौमुल जुमुआ, जुमे वाले दिन को रब ने दिनों में सबसे अफजल बनाया। सोनिया जुमे की तो और भी फजीलतें हैं। जुमे वाला दिन एक नेकी करोगे 70 गुना नेकी का सवाब मिलेगा। जुमे वाला दिन ईद का दिन भी, जुमे वाला दिन मोमिन की बख्शिश का दिन, जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी मुयस्सर आए कि जब मोमिन दुआ करे तो मोमिन की दुआ रब उस घड़ी में रद्द नहीं फरमाता। रब ताला उस घड़ी में मोमिन की दुआ रद्द नहीं फरमाता। अब तवज्जो फरमाइए, मेरे और आपके नबी करीम अलैहि सलाम ने ये सारी फजीलतें जुमे वाले दिन की बयान फरमाई है। अच्छा वजह क्या है? फरमाया फी है खुलिका। अल्लामा इब्न अब्दुल बर कहते हैं, तवज्जो करना, उनकी तशरीह बयान कर रहा हो, फरमाते फीहा, हुजूर ने फरमाया फीहा खुलिका आदम व उहबिता इलल अर्द, क्योंकि इसी दिन रब ने आदम को दुनिया में भेजा। आए हाय, अब तवज्जो करना, इसी दिन रब ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा। इसी दिन रब ने उन्हें दुनिया में भेजा, पैदा फरमाया। अच्छा हुजूर गौस मखदूमियतुल तालिबीन में आप नकल करते हैं एक साहबी की रिवायत कि वो फरमाते हैं मुझे पता है कि वो घड़ी कौन सी है जिस वक्त में रब ताला मोमिन की जुमे वाले दिन दुआ रद्द नहीं फरमाता। उनसे पूछा गया बताइए ना वो घड़ी कौन सी है, हम भी ताकि उस वक्त में बरकत हासिल करें दुआओं की कबूलियत के लिए। तो आप फरमाते असर से लेकर मगरिब तक वो घड़ी आती है, और साथ में भी फरमाते इसलिए कि इसी घड़ी में रब ने हजरत आदम को पैदा करवाया है। आय हाय हाय, अब बात को समझने की कोशिश करो, मेरे नबी का फरमान समझो। हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम को पैदा फरमाया रब ने, इसलिए रब ने जुमे वाले दिन को ये शान अता फरमाई है। गौर करो मुसलमानों, जिस दिन आदम दुनिया में आए तो हर नेकी 70 गुना बढ़ जाए, मोमिन की बख्शिश का दिन बने, ईद का दिन बने, दुआओं की कबूलियत की घड़ी मुयस्सर आ जाए। गौर करो, जिस दिन आदम के भी सरदार नबियों के सरदार आए तो ज़माना और दिनों की शान वाला होगा, वो ज़माना कितनी शान वाला होगा। जिस ज़माने में खुद ने आमना के लाल को दुनिया में भेजा है, इसलिए मेरे इमाम कहते हैं जो सुहानी घड़ी चौका तैबा का जा उसने लफ्ज़ों से साहब बिला खुशा, वो दिन भी यकीनन ईद से बढ़कर दिन है जिस दिन में नबियों के सरदार आए। अच्छा आप गौर करें ना, रब ने उस घड़ी को हमेशा के लिए रख दिया जुमे वाले दिन में, जिस घड़ी में हजरत आदम आए। फरमाया वो घड़ी है कि जिसमें रब ने हजरत आदम को पैदा किया, और वो घड़ी इतनी शान वाली है कि उस घड़ी को अगर मोमिन पाले तो रब ताला मोमिन की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, रद्द नहीं फरमाता। अब वो घड़ी इतनी शान वाली है, सोच तो सही वो घड़ी कितनी शान वाली होगी जिस घड़ी में आमना के लाल आए हैं, जिस घड़ी में आमना के लाल आए हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उसने
افروز ساعت پہ لاکھوں سلام تو سنی جو لگے کہ فلک میں نظارو بچے تھے نا تو ہمیں بھی یہ کلام اس وقت سننے کو ملتا ہے. اب ہم بھی بڑے ہو گئے, بچے بوڑھے جوان سب کو یہ کلام یاد ہے, اور آپ ویسے بھی گھر تک پہنچوانے میں رہتے ہیں اور میاں صاحب کی نزدیک میں رہتے ہیں کہ تھوڑیاں سونا بھی چنگیاں نے تے سر بھی چنگے ہیں. نہیں سمجھے ہو تھوڑیاں سونا اس لیے نے جنہاں کا سر بھی ہے, سر بھی سر بھی وہ چنگی ہوتی ہے جنہاں سر بھی ہوئے گا. اس واسطے سارے مل کے پڑھو گا فلک کے نظارے سبھی کے بناؤ حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. جس کا یقین ہے کہ رب کائنات نے سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال کو بنا کر بھیجا, سب سے بڑی رحمت آمنہ کے لال کو بنا کر بھیجا, وہ مل کے پڑھے گا حضور آ گئے, حضور آ گئے. خطاب ہے اور ایک دن تین تین چار چار خطاب ہے. توجہ فرمائے, میں تو کنجوسی نہیں کر رہا, اور غلط بھی چاہنا تو کوئی مان نہیں ہے کہ ایک خراب ہو گیا تو دوسرا لے لیں گے, تو میں نے تو کوئی کنجوسی نہیں کی نا, میں گائی ہونا کی نہیں جنہوں نے تو سپورٹا دے دیا تھا. اچھا اصل میں غیر دیکھیوں دے دیا تو سب کچھ دیکھ دے, اصل میں بغیر دیکھیوں دے دیا سانوں نے تبدیلی دے نعرے لائے گے, یہ ساری وجہ تو مہنگائی نہیں ہے. توجہ کر لو, اس واسطے میں کہ سارے حضور آ گئے
बापे को भी बचाओ ते नाल खुद को भी बचाओ। बापे को बचा दो ना, कम से कम तुम्हारी खतरे की जद में बाबा तो ना आए। आए आए, इसलिए हम ये कहते हैं हुजूर का मिलाद मनाना बड़े मुकद्दर की बात है। हुजूर का मिलाद मनाना बड़े मुकद्दर की बात है। शाह वलीउल्लाह और जितने आइम्मा थे, बुजुर्ग थे, सल्फ खल्फ थे, उनका तरीका है, उन्होंने हुजूर का मिलाद मनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उम्मती का मुकद्दर है। हुजूर नबी पाक ने खुद अपनी विलादत का जिक्र किया है। अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं आपको हदीसें सुनाता और तिरमिज़ी में अबवाबुल मनाक़िब में दीगर कुतुब के अंदर रिवायात मौजूद हैं कि मेरे हुजूर ने खुद अपनी विलादत का जिक्र किया है। गोया हुजूर ने खुद अपना मिलाद मनाकर मुझे तुझे बता दिया, क़यामत तक तू भी अगर मिलाद मनाएगा तो कमली वाले आका के अमल की सुन्नत अदा करेगा। जी हाँ, हुजूर ने क्या ये नहीं फरमाया, रब ने मुझे सबसे बेहतर कबीले में पैदा फरमाया, ये हुजूर का मिलाद है या नहीं? रब ने मुझे सबसे बेहतरीन नस्ब और खानदान में पैदा फरमाया, ये हुजूर का मिलाद है या नहीं? आया है। फिर हुजूर ने फरमाया फकामा अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पर खड़े हुए, फरमाया माना सहाबा में कौन हूं? फिर खुद कहने लगे अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, रब ने मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की शान अता की। और सुनो, कायनात को पैदा किया, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, और खुदा ने कायनात को पैदा किया तो रब ने बेहतरीन घर में मोहम्मद को पैदा किया, बेहतरीन खानदान में मोहम्मद को पैदा किया, बेहतरीन कबीले में मोहम्मद को पैदा किया, बेहतरीन नस्ब में मोहम्मद को पैदा किया। बता तो सही, क्या ये मोहम्मद ने अपने मिलाद का जिक्र न किया? हुजूर ने खुद अपने मिलाद का जिक्र, हुजूर फरमाते हैं आना खैरुम मिनकुम नसबा व बयूता, मैं घरों में भी तुमसे बेहतर हूँ, मैं नस्ब और खानदान में भी तुमसे बेहतर हूँ। रब ने मुझे इतनी शान वाला मिलाद अता फरमाया है, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के मिलाद की बरकतें अता करें। लेकिन हुजूर की गुलामी इख्तियार करो, सच्ची गुलामी इख्तियार करो, ताकि क़यामत वाले दिन पता चले कि मोहम्मद का गुलाम आ रहा है, अपने दामन को सजदों की सौगात भी भर के लेके आ रहा है। सजदों की लज्जत मांगो। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, कौन? सिर्फ जुमा पढ़ने वाले, और जुमा भी इस नीयत से घर से निकल आते हैं कि बीवी कहेगी कितना मनूस है, जुमा भी नहीं पढ़ता, बीवी बच्चों के डर की वजह से घर से निकल आता है। और एक वो बंदा है, अच्छा उसे फिक्र भी नहीं होती कि मैंने कुछ हफ्ते में किया ही नहीं है, हफ्ते की कारकर्दगी जीरो है, सिर्फ जुमा, तेरी कारकर्दगी में नाम आया में सिर्फ जुमा है, एहसास फिर भी नहीं है। और एक वो बंदा है कि जो जिसकी फजर की कज़ा हो जाए तो पूरा दिन बेचैन रहता है, फजर की कज़ा हो जाए तो पूरा दिन बेचैन रहता है। आज मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कहा बंदा वो भी है, बंदा ये भी है, पर उसका एहसास बंदगी मर चुका है, इसका एहसास बंदगी जिंदा है। खुदा से मांगा करो कि खुदा एहसास बंदगी को जिंदा रखे। एहसास बंदगी जिंदा रहे तो कभी ना कभी खुदा की बारगाह में झुकना नसीब हो जाता है। माली ना कम पानी देना पर मशका पावे, मैं और तू क्या है रब की बारगाह में माली है, माली ना कम पानी देना पर मशका पावे, हमें उसके दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, कभी ना कभी रहमत का दरवाजा तो खुलेगा ना। माली ना कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक ना कम फल फूल लौटा लावेगा ना लावेगा। और फिर सुनो मियां साहब क्या कहते हैं, ये दुनिया एक चक्की याद हो, मिलाद मनाने वालों हुजूर की आंखों की ठंडक का भी ख्याल करो, जैसे हुजूर ने अपनी आंखों की ठंडक बना दिया है। तवज्जो है ना, इको कम करें, तवज्जो कीजिए, अब इको बढ़ाना नहीं है। मैंने इनसे ना कुछ ऐसी बातें करनी है जो सच्ची और खरी बातें हैं, पहले भी सच्ची और खरी हुई है, पर ये आज वक्त की जरूरत के एतबार से बहुत खरी है। तवज्जो करना, अपने अंदर एहसास बंदगी पैदा करो। मियां साहब कहते हैं ये दुनिया एक चक्की यारो ते असीं तुसीं ना दाने, तवज्जो है, ए दुनिया एक चक्की यारो असीं तुसीं ना दाने, वारी वारी सबने जाना की राजे की दाने। जिंदगी के सबसे करीब शय मौत है। गौर करें आप, कोई शय नहीं, आपकी तनख्वाह करीब नहीं है, आपका बोनस भी करीब नहीं, आपकी दुनिया को कोई फायदा करीब नहीं। जिंदगी के सबसे करीब शय मौत है। चलती सांसों का नाम जिंदगी है, सांसें रुक गई तो नाम मौत है। इसलिए अपने अंदर एहसास बंदगी पैदा करो, अल्लाह के हुजूर झुका करो। जिनको सजदों की लज्जत आ जाती है ना, वो रातों को उठ कर खुदा की रहमत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और बंदा पूरा हो जाए,
ख्वाहिशात बिल्कुल भी बुरी ना हो तो फिर बुढ़ापा ऐसा किसी काम का नहीं हो। असल तो मसला ये है कि इंसान के अंदर की ख्वाहिशात भी बुरी हो जाए। मेरे हुजूर फरमाते कल्ब शेख शाकुल अलाहु बिस्तैन, बूढ़े का दिल दो चीजों में जवान रहता है, एक माल की कसरत में और दूसरा उम्र की तवालत में, उम्र के लंबे होने में बूढ़े का दिल जवान रहता है। असल बुढ़ापा ये है कि मन भी बूढ़ा हो जाए, ख्वाहिशात भी बुरी हो जाए। और ये बुढ़ापा वो बुढ़ापा है कि जब सफेद बाल आते हैं तो अर्श मौला के फरिश्ते भी हया करते हैं, अर्श मौला के फरिश्ते भी हया करते हैं। झुको खुदा की बारगाह में, फिर वो तुम्हें कहीं और नहीं झुकने देगा। जो है फिर वो तुम्हें कहीं और नहीं झुकने देगा। तवज्जो है ना। खादम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में ना हमने बड़े बड़े पीरों को धक्के खाते देखा है। जो पीर लाओ लश्कर के बगैर निकलते ही नहीं है, 20-20 बच्चे जब तक साथ ना होना निकलते ही नहीं अपने आस्थाने से। हमने उन्हें भी धक्के खाते देखा है। वजह क्या थी कि पीर अपने आस्थाने की बात करता है, मुफ्ती फतवे की बात करता है, अल्लाह अकबर खतीब खुतबे की बात करता है, अल्लाह अकबर मुदर्रिस तदरीस की बात करता है। खादम रिजवी को सलाम है जिसने जब भी बात की या दीन मुस्तफ़ा की है या मुस्तफ़ा की इज्जत की। इसलिए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता जोड़ो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो ताकि आपका रिश्ता आपके नबी से जुड़ा रहे, आपका रिश्ता आपके नबी से जुड़ा रहे। रोजाना की बुनियाद पर दुरूसी पढ़ा करो, ये चेहरे भी चमका देता है, ताल्लुक भी कायम रखता है। ये दुरूद शरीफ इतनी बरकत वाला अमल है। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे हैं। मौलाना हजरत हाफिज हफीज साहब जिनकी मोहब्बतों की सौगात के नतीजे में मुझ नाचीज को और चेयरमैन बरकत साहब दीगर मुंतज़िमा कमेटी की मोहब्बतों के नतीजे में मुझ नाचीज को यहाँ पे हाजिरी का मौका मिला। अल्लाह पाक सब की हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना